बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलात वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। Dear students of first year chemistry, now we are discussing calculation of partial pressure of a gas. To calculate a partial pressure of a gas in its mixture, we required following quantities of that gas. Number one, mass or moles of that individual gas in the mixture. Mass, if the mass is given, we will convert this mass into number of moles divided the mass of the given gas divided by its molar mass, and we will get moles. And if the moles are given, we can directly use them. And total pressure of the mixture and total number of the moles of all the gases present in the mixture. Then we can calculate the partial pressure of that gas whose mass or moles are provided to us. How this can be solved, वो किस तरह से हो सकता है? Let's try some calculations. Let's suppose you have a mixture of two non-reacting gases. One gas is gas A and second is gas B, and you have moles of gas A and A. मैंने I किया था इंडिविजुअल, अब चूंकि गैस A है तो इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया Na. And you have moles of gas B and B. Partial pressure of a gas in the mix of gas A in the mixture is Pa. हमने इसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? इट इज द टारगेट ऑफ अवर कैलकुलेशन. And similarly we also want to calculate the partial pressure of gas B, Pb. Now total pressure of the mixture is Pt, volume of the mixture is V, and temperature of the mixture is T. I have a question for you. What is the volume of gas A? It is V, because the volume of the mixture is the volume of gas A. And what is the temperature of gas A? It is the temperature of the mixture. जो temperature और जो volume और temperature mixture का होगा वही volume and temperature gas A और gas B का होगा. According to general gas equation, PV is equal to nRT. Now we use this equation, apply it for gas A, gas B and mixture. हम इस गैस को इस्तेमाल करते हैं. Let's suppose gas A, PAV is equal to NaRT. Equation 1. PBV NBRT. Equation 2. And PT, total pressure, volume, total moles, RT, equation 3. Divide the equation 1 by equation 3. इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दें. क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो इसलिए हमने तो एक प्रोपोर्शन बना ली, PAV NaRT डिवाइड बाय PTV NTRT. Now you can see that V can be cancelled with V, RT can be cancelled with the RT. Then we get, from this calculation we get PA over PT is equal to NA over NT. The proportion between the ratio between the partial pressure and total pressure is equal to ratio between the number of moles of that gas divided by total number of moles
of the mixture. तो बेटा जी वही बात हो रही है, pressure directly proportional to this. From this similarly, or in other words we can write, दूसरे लफ्जों में हम ये भी लिख सकते हैं PB over PT is equal to NB over NT, इस तरह से. तो PA is equal to क्या हो जाएगा, NA over NT into PT, और PB is equal to NB over NT into PT. तो देखें हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट कर लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी इन द मिक्सचर कैलकुलेट कर लिया, किससे, मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर मल्टीप्लाइड टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. तो बेटा जी दिस प्रोपोर्शन रेशियो Na over Nt, it is equal to XA. What is XA? XA is, X is क्या है, X क्या है, मोल फ्रैक्शन. क्या है, मोल फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू, ये मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, टू टोटल moles of mixture, total moles of mixture, total moles of mixture, ठीक है ना जी, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर. तो देन वी कैन राइट दैट PA is equal to XA into PT, or for gas B PB is equal to XB into PT. Remember that sum of mole fraction is always equal to 1. ये आपने अपनी 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना जी. Sum of fractions is always sum of proportions, sum of ratios. Similarly here, for here, because X is representing to mole fraction, sum of proportion, sum of ratios, in other words sum of mole fractions is equal to 1. तो अगर हमें एक गैस के मोल्स पता है तो हम दूसरे के, एक गैस की मोल फ्रैक्शन पता है तो हम दूसरी के निकाल सकते हैं. तो in this way we can define the partial pressure in another way. Another definition of partial pressure, of partial pressure, what is that? आपकी किताब में लिखा हुआ है, the partial pressure is of the gas is equal to product of the mole fraction, product of mole fraction and total pressure of mixture. Partial pressure of a gas is equal to product of mole fraction of that gas and total pressure. तो बेटा जी हमेशा किसी भी गैस की वैल्यू लेस यूनिट से कम होती है, तो ये इस तरह से है. तो अब आगे बेटा जी एग्जांपल्स शुरू करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं. देयर इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन ऑक्यूपाइंग ए वेसल. 3 गैसेस हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, और वो एक कंटेनर के अंदर मौजूद है जिसका वेसल, जिसका वॉल्यूम है 13 क्यूबिक डेसीमीटर. ठीक हो गया जी. तो 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन चेंज कर लिया. प्रेशर जो है बेटा जी, एंड प्रेशर ऑफ द मिक्सचर 1 एटमॉस्फेयर, इसलिए मैंने टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर विच इज इक्वल टू 760 टॉर. द मैसेज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, mass of hydrogen 0.8 ग्राम एंड हीलियम की 0.12 ग्राम ये दी गई है. तो सवाल क्या किया गया है, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन. हमें मीथेन की मैस नहीं दी गई, बट इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक some little calculation. As we know that PA, partial pressure of a gas, is equal to
Na टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड पीटी। ये फार्मूला अभी मैंने आपको कैलकुलेशंस में सिखाया है। कोई भी गैस ए हो, गैस ए हाइड्रोजन है, गैस ए हीलियम है, गैस ए मीथेन है, हमें क्या क्या चाहिए? एक तो खुद गैस के मोल्स चाहिए और दूसरे टोटल मोल्स। क्या हमें टोटल मोल्स बताए हैं? नहीं बताए। हम पहले टोटल मोल्स कैलकुलेट करते हैं। किस तरह से? हमें पता है जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक पीटीवी इज इक्वल टू एनटी आरटी। एनटी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? पीटी टोटल प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय आरटी। सारी वैल्यूज पुट कर दें। 1 एटमॉस्फेयर वॉल्यूम 13 क्यूबिक डेसीमीटर, आर की वैल्यू 0.0821 डीएम क्यूब, एटमॉस्फेयर, इनवर्स केल्विन, इनवर्स मोल, मल्टीप्लाई टेम्परेचर 310 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, मोल एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर, डीएम क्यूब से डीएम क्यूब। आपका सिर्फ क्या बच जाएगा? मोल इनवर्स, जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मोल्स बन जाएगा। ठीक है ना? जब उसको फ्रैक्शन को क्रॉस करेगा तो न्यूमरेटर में जाएगा तो मोल हो जाएगा। तो बड़ा वॉल्यूम मोल्स आते हैं 0.51 मोल। ये आपने पहले कैलकुलेट कर लिए। अब हमारे लिए आसानी है। अब हमें दूसरी क्या चीज चाहिए थी? मोल्स ऑफ ईच गैस। हमें मैस दी गई है तो मैस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में तब्दील करते हैं। मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मैस। हाइड्रोजन का 2.016 तो डिवाइड किया तो NH2 कितना आ जाता है जी? 0. चलिए यहाँ पे उन्होंने 0 से कर लिया 2.0 तो 0.16 मोल। हाइड्रोजन के बड़े मोल्स आ गए, टोटल मोल्स भी आपके पास आ गए, हाइड्रोजन के मोल्स आ गए। इसी तरह से आप क्या निकाल लें? हीलियम के मोल्स निकाल लें। मोल्स ऑफ हीलियम किसके बराबर हो जाएगा? 0.12 डिवाइड बाय 4, 0.3 मोल। 0.3 मोल्स। ये अलग सारा काम हो रहा है। ठीक हो गया ना जी? याद रखिएगा, अलग मैं काम कर रहा हूं। तो अब जो है हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। वो हमें टॉर में निकालना है तो इसलिए। तो फिर बेटा जी PH2 किसके बराबर होगा? NH2 अभी हमने निकाला 0.16 प्लस हाइड्रोजन टोटल मोल 0.51 मल्टीप्लाइड 760। हमारे पास आंसर आ जाता है कितना? हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर आ गया है जी, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर 0.784 टॉर। एक एटमॉस्फेयर को 760 में मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से आप पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कैलकुलेट कर सकते हैं। NHE की वैल्यू अभी आपने निकाली 0.3 डिवाइड बाय 0.51 मल्टीप्लाइड 760 जो कि टोटल प्रेशर है। PT की वैल्यू 760। तो फिर हमारे पास जो है हीलियम का जो पार्शियल प्रेशर आता है, हीलियम का सॉरी यहाँ पे उन्होंने मोल फ्रैक्शन के जरिए से किया है, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने जरा सीधे ही कर दिया है। तो पहले हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो आता है 589 टॉर, 589.76 टॉर। और इसका जो है वो पार्शियल प्रेशर कितना आ जाता है हीलियम का? 44.08 टॉर। और अब रह गया मसला किसका जी? मीथेन का। देखिए मीथेन का हमें पहले NCH4 की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है जी NT किसके बराबर है? NH2 प्लस NHE प्लस NCH4। ठीक हो गया ना जी? तो अब हम एक स्टेप और कर लेते हैं। हमें पता है कि फिर NCH4 किसके बराबर होगा? NT माइनस NH2 प्लस NHE। हाइड्रोजन और हीलियम के मोल्स को जमा करके टोटल मोल्स में से माइनस कर दें। टोटल मोल्स कितने हैं? 0.51। हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? 0.16। हीलियम के 0.3। तो जब इनको हम जो है वो 0.03 0.03 तो बेटा जी NCH4
NCH4 ज्यादा नीचे जा रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये कितने आ जाते हैं। NCH4 जो है वो हमारे पास आ जाता है उसकी वैल्यू आ जाती है माइनस करने के बाद 0.084 मोल। लो जी, अब आपके पास NCH4 भी है, NT की वैल्यू भी है, NCH4 हमने निकाल लिया। तो अब हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं कि PCH4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मीथेन 0.084 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने थे 0.51, ठीक हो गया ना जी, प्लस टोटल प्रेशर 760 टॉर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास फाइनल जो इसका मीथेन का पार्शियल प्रेशर आ जाता है 124.64 टॉर। तो इस एग्जांपल से बेटा जी जो है वो अगर आप सम करें ना जी सारे प्रेशर्स का 589 टॉर 589.76 ये पार्शियल प्रेशर है किसका हाइड्रोजन का, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कितना भी हमने निकाला 44.08 और पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन जो है वो कितना जी 124.64। इनको सबको हम जमा करें तो हमारे पास वो किसके सम के बराबर आता है पीटी टोटल प्रेशर 760 टॉर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ partial pressures of individual gas in the gaseous mixture is equal to total pressure exerted by the mixture। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था। तो बेटा जी यहां से हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, साथ थोड़ा सा डिफ्यूजन वाला भी करेंगे अगर टाइम की गुंजाइश, एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। शुक्रिया।